So, having these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Receive us, we have wronged no man, we have corrupted no man, we have defrauded no man. I do not speak this to condemn you, for I have said before that you are in our hearts to die and live with you. Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of you. I am filled with comfort, I am exceeding joyful in all our tribulation. For when we were coming to Macedonia, our flesh had no rest, but we were troubled on every side. Without were fightings, within were fears. Nevertheless, God that comforts those that are cast down comforted us by the coming of Titus, and not by his coming only, but by the consolation with what he was comforted in you. When he told us your earnest desire, your mourning, your fervent mind toward me, so that I rejoice the more. For though I made you sorry with a letter, I do not repent, though I did repent, for I perceive that the same epistle has made you sorry, though it were but for a season. Now I rejoice not that you were made sorry, but that you sorrow to repentance, for you were made sorry after a godly manner, that you might receive damage by us in nothing. For godly sorrow works repentance to salvation, not to be repented of. But the sorrow of the world works death. For behold, this same thing that you sorrowed after a godly manner, what carefulness it wrought in you, yea, what clearing of yourself, yea, what indignation, yea, what fear, yea, what vehement desire, what zeal, yea, what revenge. In all things you have approved yourself to be clear in this matter. So I wrote to you, I did it not for his cause that had done the wrong, and not nor for his cause that suffered wrong, but that our care for you in the sight of God might appear to you. So we were comforted in your comfort, yea, and exceedingly the more joy we for the joy of Titus, because his spirit was refreshed by you all. For if I have boasted anything to him of you, I am not ashamed, but as we spoke all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth, and his inward affection is more abundant toward you, whilst he remembers the obedience of you all, how with fear and trembling you receive him. So I rejoice that I have confidence in you in all things. आता हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मालिन्यता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हमें अपने हृदय में जगह दो। हमने ना किसी के साथ अन्याय किया, ना किसी को बिगाड़ा, ना किसी को ठगा। मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यह नहीं कहता, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि तुम हमारे हृदय में ऐसे बस गए हो कि हम तुम्हारे साथ मारने जीने के लिए तैयार हैं। मैं तुमसे बहुत हियावों के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है। मैं शांति से भर गया हूँ। अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ, क्योंकि जब हम माकिदुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे। बाहर लड़ाइयाँ थीं, भीतर भयंकर बातें थीं, तो भी दोनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति दी, और न केवल उसके आने से परंतु उसके उस शांति से भी
जो उसका तुम्हारी ओर से मिली थी। उसने तुम्हारी लालसा, तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारे ढूंढने को समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ, क्योंकि यद्यपि मैंने अपने पत्री से तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं, जैसा कि पहले पछताता था। क्योंकि मैं देखता हूँ कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वो थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुँचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुँचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उसने पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। अतः देखो, इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तो मैं कितना उत्साह और प्रत्युत्तर और रिस और भय और लालसा और ढूंढ और दंड देने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से ये सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। फिर मैंने तो जो तुम्हारे पास लिखा था, वो ना तो उसके कारण लिखा जिसने अन्याय किया, और ना उसके कारण जिस पर अन्याय किया गया, परंतु इसलिए कि तुम्हारा उत्साह जो हमारे लिए है वो परमेश्वर के सामने तुम पर प्रकट हो जाइए। इसलिए हमें शांति मिली। हमारे इस शांति के साथ तीतुस के आनंद के कारण और भी आनंद हुआ, क्योंकि उसका जी तुम सब के कारण हारा भारा हो गया है। क्योंकि यदि मैंने उसके सामने तुम्हारे विषय में कुछ घमंड दिखाया तो लज्जित नहीं हुआ, परंतु जैसे हमने तुमसे सब बातें सच सच कह दी थी, वैसे ही हमारा घमंड दिखाया तीतुस के सामने भी सच निकला। जब उसको तुम सबके आज्ञाकारी होने का स्मरण आता है कि कैसे तुमने डरते और कपते हुए उससे भेंट की, तो उसका प्रेम तुम्हारे और भी बढ़ता जाता है। मैं आनंदित हूँ, क्योंकि मुझे हर बात में तुम पर पूरा भरोसा है।